Morning, everyone. In today's class, I'm going to introduce a very important concept of relations and functions, which is the basic foundation for many of the concepts which we'll be studying later on, particularly as a case of a calculus, which is studied in grade 12 or 11th. Maybe we are taking a few portion of the same. The majority of the students in general find this chapter a little bit boring and abstract, but if you really try to understand, you work, you practice, this chapter is very interesting at the same time. So let's start with relations and functions. And to understand relations and functions, we initially need to understand what do we mean by Cartesian product of two sets. Consider the definition of an ordered pair. Two numbers A and B listed in a specific order and they are enclosed in a parenthesis, they will refer to as the ordered pair. तो ordered pair में first A हो जाएगा, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट कहो, और सेकंड मेंबर हो जाएगा बी या सेकंड कंपोनेंट. As in our coordinate geometry, this is a point say 2, 3. This is a point 3, 2, which are different. तो A, B है ये, और ये in general अगर है B, A, then they are not equal. Let's start with a very basic idea of equality of two ordered pair. AB is equal to CD. Ordered pair equal कब होंगे? When first element equal हो जाएगा and second elements वो equal हो जाएंगे. Consider this question very simple. A minus 1 हो जाएगा 2, B plus 5 हो जाएगा 3, और it gives me the value of A as 3, yes, ठीक है, and B as minus 2. Another very simple question, check this out. So first पेयर को आपने और सेकंड पेयर को किया. यस, तो चेक करिए. x2. यस, x plus 1 हो गया 5/3 and y minus 2/3 is 1/3. तो बस अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, this is 5/3 minus 1 और x/3 is 2/3, giving x as 2, and similarly you will get the value of y. तो वो तो बेसिक चीजें हैं. I will not solve each and every part of it, that you can complete. Yes, check this out. एक्सप्रेस x, y ऑर्डर्ड पेयर में लिया है. कॉलन का मतलब क्या होता है? सच दैट, क्या कंडीशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड एक्स वाई क्या है? होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या हो जाते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो आपको कह रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखकर बताइए x, y which satisfy this condition. तो x भी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकता है, y भी सेम हो सकता है. तो आप चेक करिए, व्हेन आई टेक x as 0, तो 0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 25, y will be plus minus 5, but as y represents a whole number, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. तो x था 0 और y आ गया 5. तो 0, 5 एक ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया मेरे आंसर में.
अब अगर मैं x को 1 रखता हूं, वैसे तो कॉमन सेंस से भी क्लियर है, बट चलो मैंने स्टार्टिंग में x को 1 रख के देखा। y स्क्वायर 24, y विल बी plus minus root 24. None of the value is a whole number. It's a irrational number in fact. तो whole number नहीं है, इसलिए ये तो मेरे ordered pair में आंसर नहीं देगा। इसी तरह से check it out for x equal to 2, the case will be rejected. x को 3 रखते हैं, then check it out, इस फार्मूला में रखा x को 3, so y स्क्वायर इज 16 और चेक करो सिर्फ होल नंबर चाहिए 3,4। ऐसे ही x को 4 रखा एंड अब ये तो लग रहा है कि ये प्रोसेस चलते जाएगा, ऐसे कब तक हम वैल्यूज रखेंगे, बट यू विल फाइंड दैट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ये 4 3 आ गया। अब एक बार जब मैंने x को 5 रख दिया, you will easily observe y स्क्वायर 0 और y आ गया 0 which is a whole number, तो 5,0। अब आप x को चाहे 6 रखो 7 रखिए, they are all giving me the negative value जो सॉल्व करके आएगी y स्क्वायर की, और स्क्वायर ऑफ अ नंबर कांट बी नेगेटिव, तो आगे कुछ भी केस पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, आपसे ऑर्डर्ड पेयर पूछे थे 0,5, देन 3,4, 4,3 एंड 5,0। But do remember, if I modify the definition of this question, ये नया क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, अगर मैं यहां W की जगह में Z कर देता, then what will be the impact? Z represent the collection of integers. तो integers के केस में definitely answer will consist of many more elements. Few examples, 3, -4 भी इसमें आएगा। It would include the negative number also. Yes, -4,3, -4, -3, -5,0 and so on. So you will find the number will increase. Try out in your homework. तो अगर मॉडिफाई कर दिया जाए गिवन सेट, such type of question you will actually find in the assignment. अब हम आते हैं मेन चीज जो मैंने कहा था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। Let A and B are two non-empty sets. Then their Cartesian product denoted by A cross B. This will consist of all ordered pairs such A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. So this way we define the Cartesian product. And if any of the set is empty set, Cartesian product will become phi, empty set itself. अगर A या B में से कोई भी infinite set है, of course cross product will be infinite set. This Cartesian product will be infinite set. ये सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया है। इनफाइनाइट अगर हो कोई भी इनमें से, तो A क्रॉस B हो या B क्रॉस A, they will also become infinite. Now second, this result is important. If number of element in A is say P, number of element is set B is Q, then A क्रॉस B की कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, P क्रॉस Q. इनफैक्ट B क्रॉस A में भी PQ हो जाता है, एंड दिस आइडिया इज एक्सटेंडेबल। कैसे? A क्रॉस B क्रॉस C,
We will talk about this also. So that will be n of A into n of B into n of C. There are certain results based on the Cartesian product of two sets. We are not going to take a proof of any of this result, but they can be asked in the MCQ true false form and verification at the same time. So please understand them carefully. क्विकली एक दो रिजल्ट्स को देखिए, जैसे ये है फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, देखिए कैसे क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. एंड एज यू कैन मेक अ रफ गेस, ए क्रॉस बी माइनस सी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लाइक ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी एंड सो ऑन. जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग वी आर टेकिंग, प्रूफ नहीं करेंगे. यू कैन अवॉइड दिस रिजल्ट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है, बट चेक इट आउट. इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, ए और बी में अगर n एलिमेंट्स कॉमन है, तब a क्रॉस b एंड b क्रॉस a में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होते हैं. अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं. A एंड B गिवन है, यू नीड टू फाइंड देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स. तो A क्रॉस B निकालो, B क्रॉस A एंड सो ऑन. तो लेट मी बिगिन विद A क्रॉस B. चेक करिए, ये रहा सेट A और ये रहा B. तो A इज 1 3 5, B इज 2 3. तो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. पहले A से 1 लिया, तो 1 के साथ B से दोनों एलिमेंट आ सकते हैं. 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है. फिर आई टर्न 3 की, तो क्या हो जाएगा यहाँ, 3 के साथ 2 3,3 यस. और इसी तरह से मान लीजिए आई टर्न ऑफ 5 के साथ 2 एंड 5 के साथ 3. दैट विल गिव मी दी कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B. इसी तरह से अगर मुझे B क्रॉस A लिखना है, तो हार्डली मैटर्स, आप या तो इसी के ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स में लिख दो. कैसे? सिंपली 2 1 3 1 2 3, मैं इनको रिवर्स करते जा रहा हूं. 3 3 2 5 एंड 3 5. और दूसरा भी क्या था सोचने का, ये रहा B और ये रहा A. पहले B लिख लिया और फिर A लिख दिया. अब हमें लिखना है B क्रॉस A. तो B से 2 लिया, 2 with 1, 2 with 3, 2 with 5. इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 की टर्न आ जाएगी, 3 with 1, 3 with 3 एंड 3 with 5. नोट केयरफुली, ये लिखने में बस इनकी प्लेसमेंट थोड़ी अलग हो सकती है. जैसे 3 1 यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा है और यहाँ ये 4th पोजीशन पर आ गया है, बट दैट हार्डली मैटर्स. सो बोथ आर योर करेक्ट आंसर्स. और फिर आपसे थर्ड पार्ट में क्या पूछा था, इनका इंटरसेक्शन. व्हाट इज द आंसर?
Do you find any element common to them? Sir, all the elements are Sir, common. 3,3. Yes. तो 3, कॉमन अगर आप देखेंगे तो 3,3 आ रहा है. Yes, you are to write down the basic definitions which were followed. Some student asked, किसी ने पूछा था, मैंने अभी देखा है. Yes, so you have to write down those definitions. Check this out. सेट ए, बी एंड सी आपको दिए हुए हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट विल बी योर सेट ए? यस, ए के अंदर क्या क्या कंटेन कर रहा है? Sir, 2 and 3. बस आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देंगे. रूट्स आ रहे हैं 2 and 3. बी इज and C is natural number less than 3. So this is first thing we already have done. अब आया वेरिफिकेशन वाला पार्ट. तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, यू आर टू वेरीफाई. क्या वेरीफाई करना है? रिजल्ट A क्रॉस B यूनियन C इसके इक्वल है. So how I am going to proceed? Consider LHS. A cross B union C. बॉड मास को भूल मत जाना, तो ब्रैकेट अकॉर्डिंगली पहले सॉल्व करेंगे. व्हाट इज सेट ए? 2,3 लिख दिया. क्रॉस प्रोडक्ट विद B यूनियन C. व्हाट इज 0, 1, 2. 0, 1, 2. एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालना सीख चुके हैं. ये पहले 2 की टर्न आई ए से, तो 2, 0, 2, 1, 2, 2. एंड देन आई टर्न 3 की, 3 के साथ 0, 1 एंड 2. सो ये मेरा LHS आ चुका है. इसे चलो इक्वेशन 1 कह दिया. अब हम बात करेंगे RHS की इस क्वेश्चन में. तो RHS के लिए आई विल इनिशियली फाइंड A क्रॉस B सेपरेटली. A क्रॉस B का मतलब 2, 3 एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद 0, 1. 2 के साथ लिया, 2, 0, 2, 1. एंड देन मैंने लिया 3 के साथ, 3, 0, 3, 1. नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे? A क्रॉस C. A इज 2, 3 एंड C आप लिख चुके थे, ये रहा 1, 2. तो लेट मी फाइंड आउट दिस क्रॉस प्रोडक्ट. 2 के साथ क्या क्या आ जाएगा? 2, 1, 2, 2. देन इट इज द टर्न ऑफ 3. 3 के साथ 3, 1 एंड 3, 2. फाइनली हमें क्या लिखना था? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. तो थिंक लॉजिकली. जब आप यूनियन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन यूनियन करना है फर्स्ट पार्ट में. सॉरी सर, सॉरी. हाँ, सेकंड है यूनियन, वही देखना है. तो चेक आउट द यूनियन. अगर आप ध्यान से देखें, जो कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाएगा. ये और ये कॉमन थे, एक ही बार आएंगे. तो यहाँ से आ गया से 2, 0, देन 2, 1. देन नीचे से मैं 2, 2 लिख लेता हूँ पहले. फिर मैं 3, 0 फिर लिख देता हूँ 3, 1 एंड 3, 2.
ऑर्डर हार्डली मैटर किस में आप अरेंज कर रहे हैं, बट अब अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट इज प्रूव्ड। दोनों सेम आ गए हैं ना, हेंस वेरीफाइड। The second part for verification in your homework, read the question, understand, A and B are two sets given in such a way such that A cross B contains 6 elements. So what does that mean? Cardinality of A cross B is 6. और देखिए फिर कह रहे हैं 3 एलिमेंट्स आपको ऑलरेडी गिवन हैं A क्रॉस B में। तो चेक दिस आउट। Sir, we are getting elements of both the sets. Yes. Yes, sir. This is a arrow diagram approach, though I have introduced quite later, but आप इसे यहाँ भी समझ सकते हैं। A को अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट पेयर जो है वो A को रिप्रेजेंट करेगा। तो एलिमेंट्स इन A अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ से 1, 2 and 3, और सेकंड पेयर हमारा हमेशा बाद वाला सेट B है, मतलब 3, 5, ये रिपीटिशन है तो एक ही बार लिखा जाएगा। और अब अगर आप ध्यान से देखें, कार्डिनलिटी ऑफ A 3 अगर लग रहा है, पता चल रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ B 2 है, वी ऑलरेडी हैव लर्न। कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, इसके इक्वल, विच मैचेस विद आवर कंडीशन। तो इससे मुझे क्या पता चल गया क्लियरली, A क्या है 1, 2, 3 and B is 3, 5. Sir, the missing elements are 1, 5, 2, 3 and 3, 5. Yes. आप चेक करिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स अब आपसे पूछे थे, तो अगर मैं एक में तो क्या है, मैं A क्रॉस B क्विकली लिख दूं, ये A है ये B है, तो 1 with 3 is 1 की टर्न आई, 1 with 5, then it is a turn of say 2, 2 with 3, 2 with 5, और फिर फाइनली मैंने मानो ले लिया इस 3 को, 3 with 3 and 3 with 5। आपसे रिमेनिंग पूछे थे, तो पहले से कौन से आ चुके हैं, 1, 3 ये रहा गिवन था, चलो ये गिवन था, 2, 5 गिवन था एंड 3, 3 गिवन था। तो देयरफॉर रिमेनिंग वंस की अगर मैं बात करूं, वो हो जाएंगे 1, 5, 2, 3 एंड 3, 5। सो जो आप अगर ये 1 मार्कर है तो अब तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे विदाउट सॉल्विंग और शोइंग एनीथिंग। नोट दिस केयरफुली नाउ। ये मैंने ये डायग्राम बनाया था ना, ये सेट A और B को डिपिक्ट कर दिया था। 1 से 3 जा सकते हैं या 1 से 5, ये एरो लगा देते हैं हम इनके ऊपर, सो दैट मुझे पता है कि अब यहां से क्या गया, 1 with 3 and 1 with 5 is possible. This is the another alternative way how we can write A cross B. फिर आई 2 की टर्न, 2 से 3 और 5 के ऊपर हम जा सकते हैं, so 2 with 3 and 2 with 5 and we are jotting down all the possibilities। फिर 3 से क्या क्या हो सकता है, 3 से 5, या मैं 3 से जा सकता हूं, 3 से 3 या 3 से 5,
3 3 or 3 5. So this all possibilities using this arrow diagram, इसका स्पेसिफिक नाम रखा गया है एरो डायग्राम, आई कैन फाइंड आउट ए क्रॉस बी। सिमिलरली सोचिए होमवर्क में अगर मुझे बी क्रॉस ए दिखाना होता यूजिंग एरो डायग्राम, तब वो कैसे होता? वेरी इजी टू विजुअलाइज। एनी डाउट टू एनीवन अप टू दिस स्टेप? चैट बॉक्स में ही बता दो y या n, दैट वे जनरली आई टेक योर अटेंडेंस ऑल्सो, कि स्पेसिफिकली या मेंटली भी अलर्ट हैं, यहाँ प्रेजेंट हैं या नहीं है। ओके जिया, ओके रिया, इंशोक राइट, अक्षत, अर्चिता, महीप, राधिका कहाँ पर डाउट है चलो पूछता हूँ मैं। निखिल, ओके अनीशा, आरती, कुणाल, निनाद, okay Suket, and what about others? Are they not here? I am not hoping and expecting every time to write why. No means आपको कहीं डाउट है, so कहीं पे भी डाउट है you can always ask your doubt. तो राधिका और निखिल किस पर्टिकुलर स्टेप में कहाँ आपको लगता है डाउट है? सर A into B वाले स्टेप में। Sir, I was trying to say no doubt. सी अगर मान लो चलो ये a इंटू बी की बात करी है, मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज कर लेता हूं एंड लेट मी कंसीडर कि बी क्रॉस ए हम कैसे लिखेंगे। यहां तक तो हो गया होगा आपका, आई एम श्योर यस इस सर। स्टेप तक। तो अगर अब आपके पास बी क्रॉस ए लिखना है तो बी एंड क्रॉस ए, व्हाट इज ए? 1 2 3। दिस इज अ स्टेप बाय प्रोसेस। स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व है? सबसे पहले यहां से क्या लिया? 3 ले लिया। अब इस 3 के साथ यहां पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। 3 के साथ 1 आ सकता है, 2 या 3। दिस इज ओके। 3 के साथ वाला जो जो पॉसिबिलिटी है। अब क्या हो सकता है? नेक्स्ट मेरे पास यहां से 5 है, तो ये 5 के साथ फिर वही 1 2 या 3 आ सकता है। 1 2 और 3, दैट्स इट। ये मेरा बी क्रॉस ए डिफाइन हो गया। इज इट ओके? यस सर। ओके चले चेक आउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके सोनालिका, आप देखा मैंने, यस ओके। चेक आउट दिस क्वेश्चन। If A cross A has 9 elements, 2 of which are -1 0 and 0 1, find the set A and then the remaining elements. सर सेट ए इज -1 0 1। Yes. आप ध्यान से देखिए A क्रॉस A में आपको क्या गिवन है? 9 elements. This means this will have 9 elements, और n of A clearly 3 हो जाएगा। तो इससे मुझे पता चल गया है कि कार्डिनैलिटी ऑफ A इज 3। ये 9 इज 3 स्क्वायर, तो n ऑफ A 3 है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि ये -1, 1 जो है, दिस इज गिवन एज बिलोंग्स टू A क्रॉस A। 0, 1 भी आपको गिवन है बिलोंग्स टू A क्रॉस A। इसका मतलब क्या हो गया? नोटेशंस को समझो कि -1 बिलोंग्स टू A, 0 बिलोंग्स टू A हो गया। फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, पेयर मैच, एलिमेंट मैच कर गए। इससे क्या पता चल गया? 0 बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू A। अल्टीमेटली
क्या हमने फाइनली ऑब्जर्व किया? -1, 0 एंड 1। 0 तो कॉमन दोनों में लिखा गया था, तो ये 3 ही एलिमेंट आ गए। सो क्लियरली set A would be then consisting of -1, 0 and 1। तो अगर आप एक सिंपल लॉजिक लगाते हैं तो शायद मुझे इतना लिखना नहीं पड़े। आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन द सेट A एंड दैट इज ओके। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेट A लिख दिया। अब कह रहे हैं आपसे रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए सबसे पहली बात, आई वुड प्रेफर इनिशियली कि मैं पहले A क्रॉस A लिखना सीख लूं। क्या मतलब? ये A है और फिर इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड? चेक दिस आउट। यूजुअल अप्रोच है, ये -1 किसके साथ जा सकता है? इन तीनों के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट तो फिक्स है, -1। इट कैन गो विद दी सेकेंड पेयर के साथ, और वो क्या आ रहा है आपका? -1, 0, -1, 0 एंड 1। बस इसके बाद तो इजी है लिखना। अब अगर 0 से शुरू करते हैं, यहां से सेकेंड एलिमेंट 0, तो 0 कैन गो विद -1, 0 एंड 1 इन तीनों के साथ। एंड देन फाइनली 1 की बात कर लेते हैं। इट कैन गो विद ऑल 3, तो 1 है ये, सॉरी, दिस इज 1। तो 1 कैन गो विद -1, 0 and 1। That way we are able to write down A क्रॉस A। तो बस अब आप चेक करिए, दो एलिमेंट मुझे पता थे, -1, 0 एंड 0, 1। चलो ये दो पता थे। आपसे क्या पूछा था? रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग आप इजीली लिख देंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी, बस जो 7 एलिमेंट्स बच गए हैं, ओ सॉरी एलिमेंट है ना, तो ये पैरेंथेसिस इस तरह का ब्रैकेट आएगा, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 and 1, 1, which is your required answer. I hope it is clear. Arrow diagram concept I already have introduced. So check out this one short example quickly. Set A and B given hai. You need A cross B using arrow diagram. तो दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इवन सिंपल है बट आ सकता है कि सेट ए गिवन है, बी गिवन है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन यूजिंग एरो डायग्राम। तो आपको ये बनाकर दिखाना होगा। As we defined ordered doublet, now we'll be talking about the extension of it as a ordered triplet. As the name suggests, triplet में थर्ड एलिमेंट जैसे A B के साथ C भी आ जाएगा, and they are listed in a specific order closed in parenthesis, और लिखा जाएगा A, B,
C. This is a common thing. जैसे A क्रॉस A कॉमा B इज नॉट इक्वल टू B कॉमा A, तो ट्रिपलेट में भी ऑर्डर अगर बदल जाएगा तो दे विल बी द डिफरेंट ट्रिपलेट, डिफरेंट एलिमेंट बन जाएंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स लाइक दिस, ये हम डिफाइन कर सकते हैं. और तीनों सेम होना जरूरी नहीं है. इवन अगर होता A क्रॉस B क्रॉस C, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ से ऑल ट्रिपलेट ABC such that A belongs to A, B belongs to B, and C belongs to C. Check this out. A गिवन है, आपको A क्रॉस A लिखना है. A क्रॉस A, you have two methods to find this. If all three sets are equal, आपकी चॉइस है, आप ऐसे ब्रैकेट लगा के इवैल्यूएट करो या ऐसे. दिस इज योर चॉइस. राइट, तो चलिए मैं फर्स्ट इससे करता हूं, जैसे ये लिखा है फर्स्ट वन. तो A क्रॉस किसके साथ? A क्रॉस A. राइट डाउन A क्रॉस A. व्हाट इज A क्रॉस A? इसका इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट. अगर प्रैक्टिस बन जाए तो आप ये 1,1,2, 2,1, 2,2 डायरेक्ट लिख सकते हैं ये. यस. और फिर इसके बाद फर्दर अब आपको इसी आइडिया को एक्सटेंड करना है. यहां से 1 और ये 1 इन सभी के साथ जाएगा. मींस 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2. ये तो 1 का हो गया काम. आफ्टर दिस 1 अब आएंगे हम, किसकी बात करेंगे? 2. तो ये 2 भी इन चारों के साथ कैसे जाएगा? 2 पहले आ जाएगा, फिर ये 1 1 2 1 2 2 2 1 and 2 2 2, which is your required answer. Check this out. Let R be the set of real number. What is R cross R represent? Real number है R. सबसे पहले what is R cross R representing? R cross R basically होगा x, y. X is a real number, y is a real number. Don't you think so? This is representing 2D points, collection of all 2D points. x, y माने से 2, -3 है या 1, -7 है, -1.5, 3/7 है. Points on a Cartesian plane. Yes, this is our Cartesian plane only. Yes, good. So actually this is representing your 2D Cartesian plane with x and y axis. The idea is extended. R cross R में क्या हो जाएगा? 3D point. 3D points का collection होने वाला है. Detail में we will study this in later on, but this will represent the collection of all the points in 3 dimension. 2D में क्या होती है? सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ. 3D में आने से हाइट भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी. I hope this idea is clear, so that quickly in a minute check it out. Homework exercise 2.1. All the ideas and questions are already discussed with you. You can quickly check this out. ये सिर्फ एनसीईआरटी के ही 2.1 के क्वेश्चंस हैं. आप चेक कर सकते हैं A क्रॉस A कैसे लिखना है, कैसे सेट्स
वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स है. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दीज क्वेश्चंस. तो मैं स्पेसिफिकली जानबूझ के सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं लेता, एक एक्स्ट्रा पहले करवा दिया प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट क्वेश्चन, सो दैट नाउ यू कैन इजीली अटेम्प्ट योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज. सबमिट योर रजिस्टर. चैप्टर 1 का अभी भी मोस्ट ऑफ द मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट, तो डू इट बाय टुडे इटसेल्फ. चलिए, एंडिंग द क्लास. You can leave the meeting. Thank Thank you, you and have a sir. good day. Thank you, sir.